Good morning, students of the BSc third year classes. Now today I will start or the discussed about to the new topic which are related to the back-to-back lecture I was discussed to the previous videos, the adaptation. I hope you are better understand about to the adaptation. Regarding adaptation, adaptation is the mechanism, is the procedures in the biologically the procedure in by which the animals which are adapted to according to the environment, which are live into the special geographic areas, so that to the several kinds of the climatic factors which are influenced. So according to the environment, the animals which are live in the areas which have to the changes for that to the survival, so that is the adaptation. And after that we are back to back in the lecture aquatic adaptation, aerial adaptation. These are mode of the adaptation is a very peculiar because that to the which found into the two special type of to the vertebrate animals, that is the fishes and to the birds. Fishes which are have to the special creature is and special features have, and birds is the unique creature for that to the aerial adaptation, so that to the several kinds of the adaptations in the form of to the survival which are going into their own specific habitat, so that to the for the aerial and to the water aquatic in nature, so which evolved to numbers up to the features. Now as like same for that to the terrestrial animals which are also throughout the all the vertebrate animals from to the fishes to the mammals have several organs, so that today's topic is totally related to the adaptation, but here is the new topics is the terrestrial adaptation. Into the previous lectures we are discussed aquatic and aerial. Now we are going into the lecture of the terrestrial adaptation. These are the adaptation which regarding live in the plains and to the burrows, or to going into the fast running, so that the particularly these type of the adaptation which are seen in the plains and to the burrows areas, are the under the stones areas which are live to the animals are animals which are live into the that area, that is called to the terrestrial adaptation, which included to the plains and to the burrows are the under the stones. So that those of the animals which are found in the plains in areas, for that to the modified their body proper body features for that to the fast running, so that this is called to the cursorial animals, and that adaptation is called to the cursorial adaptation. And those which are found into the under the stone or the burrowings is called to the fossorial animals. So there are the two kinds of the adaptation which exhibited in under the terrestrial adaptation. So so that to the we are just go now to the discussion about to on the terrestrial adaptation. Several features
several modified features for that to the survival, that is the have to the one by one. So first of all, what is the difference between to the fossorial, that is the means to the terrestrial adaptation, which are grouped into two categories. First category is that to the cursorial adaptation. Second is the fossorial adaptation. Cursorial adaptation and the fossorial adaptation. Two kinds of the adaptations which are going on, and then to discuss about. We takes to the detail into the cursorial adaptation, which found in the plains, and these are the burrowings or under the stones, so that they are the two types of the habitat into the terrestrial mode of the life of to the animals, and we just go now to discuss in the for that to the cursorial adaptation, the animals which are have to the cursorial adaptation, terrestrial animals living into the open place and depend on the speed for the searching their food and escaping from their enemies. So cursorial adaptation, first is that cursorial adaptation found into the first of all plains, and these are exhibited to the for the running and escaping to the enemies, तो इस चैप्टर में हम टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, और जिसके अंतर्गत दो ग्रुप होते हैं, कर्सोरियल एडाप्टेशन, फॉसोरियल. तो हमने कर्सोरियल एडाप्टेशन को इन डिस्कस में लिया है और उसको जो है हम लेके चल रहे हैं, और ये जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं. तो यहाँ पे अलग अलग फीचर्स होते हैं, जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में एक्वेटिक एडाप्टेशन के लिए और जो है एरियल एडाप्टेशन के लिए बहुत सारे फीचर्स को देखा था. सेम एज जो है यहाँ पर भी बहुत सारे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक बॉडी में चेंजेस नहीं आएगा तब तक जो है वहाँ पे जो एनिमल्स है वो एडाप्टेशन के लिए वहाँ पे एडाप्टेशन को नहीं दिखा सकता. तो इसलिए यहाँ पर तो हम कह सकते हैं कि जो है यहाँ पे मॉडिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं. फर्स्ट इज़ दैट टू वही बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉडी कंटूर बोलते हैं, बॉडी कंटूर्स. तो बॉडी कंटूर, बॉडी फीचर्स कैसा है उसको देख लेते हैं. तो कर्सोरियल जो एनिमल्स होते हैं वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, और क्या होती है, फ्लैटेंड थोरैक्स, जो थोरैक्स, कंप्रेस्ड थोरैक्स एंड फ्लैटेंड रिब्स, कंप्रेस्ड थोरैक्स होता है एंड जो फ्लैटेंड क्या होता है, रिब्स होती है, फ्लैटेंड रिब्स होती है.
ये पिक्यूलियर यहाँ पे फीचर्स होता है इसकी बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर यहाँ पे कंप्रेस थोरैक्स है और फ्लैटेंड रिब्स है, आप जानते हैं थोरैसिक रीजन और उसके साथ साथ में जो रिब्स होती हैं तो वो ये क्या करती हैं, इनको फास्ट रनिंग के लिए ये जो है इसको रेजिस्टेंस बनाती है। मतलब ड्यूरिंग टू द रनिंग ये जो है एयर से रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगी, और जिससे कि जो ये प्लेन्स एनिमल्स हैं, मतलब प्लेन्स में पाए जाने वाले कर्सोरियल जो एनिमल्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी को रिप्रेजेंट करते हुए एयर से रेजिस्टेंस को दिखाते हैं। रेजिस्टेंस टू एयर, ठीक। तो इसके आधार पे कंप्रेस थोरैक्स होता है और फ्लैटेंड रिब्स होता है। इसके आधार पे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं तो अगले जो हमारा कैरेक्टर है वो कैरेक्टर होता है रिडक्शन ऑफ द अल्ना एंड फिबुला। सेकेंड इज दैट रिडक्शन of ulna and fibula, रिड्यूस करती है। ये क्या है, अल्ना और फिबुला क्या है, ये बोन्स होती हैं। ये बोन्स जब आप इंडोस्केलेटन के अंतर्गत जो है बोन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे जो लिम्स होती हैं उसकी बोन्स है ये, तो अल्ना जो होती है वो फॉर लिम्स में होती है और फिबुला जो होती है वो हिंड लिम्स में होती है। अल्ना जो फॉर लिम्स के अंतर्गत पाई जाती है, फॉर लिम्स, और फिबुला जो होती है वो हिंड लिम्स के अंतर्गत आती है। तो जो कर्सोरियल जो एनिमल्स होते हैं इसमें ये रिड्यूस कर जाते हैं दोनों बोन्स, जबकि प्रॉपर जैसे अगर हम लोगों की बात किया जाए या फिर हायर एनिमल्स की बात की जाए तो वहाँ पे फिबुला और अल्ना जो है प्रोमिनेंट रूप से वहाँ पे वो अच्छी तरीके से उपस्थित होते हैं और जो है हमारे बॉडी फीचर्स हमारे इंडोस्केलेटन को बनाने में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि रिप्लेस्ड होता है किसके लिए, फास्ट रनिंग एडाप्टेशन के लिए। तो जितने भी यहाँ पे एनिमल्स इसके अंतर्गत आएंगे वो सब के सब जो है यहाँ पे जो है इसको रिड्यूस करते हैं। जो क्लेविकल बोन्स होती है पेक्टोरल गर्डल की, यहाँ पे पेक्टोरल, अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझें। अगर हम इंडोस्केलेटन की खासकर बात कर लें, कुछ बोन्स के बारे में हम आपको बता देते हैं। जब इंडोस्केलेटन, आप जानते हैं एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन्स होती हैं, तो उसके प्रॉपर उसको समझने के लिए फॉर टू द बेटर एंड द कन्वीनियंट स्टडी ऑफ टू द इंडोस्केलेटन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट नो दैट अबाउट टू द एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द skeletal system is found into the animals. So endoskeleton is formed by the bones and the cartilage inside to the body, inside to the form to the body structure, and to the exoskeleton is the form of to the various forms. So in the endoskeleton, that is the, there are the two special type of the bones which found to the axial and the appendicular. Axial bones and the appendicular bones. Axials is the central bones and to the appendicular which are associated, that so that in the appendicular bones that is found this type of to the forelimbs, hind limbs, and ulna, fibula, humerus, femur, and phalanges, digits, clavicle. तो इस प्रकार के बहुत सारे बोन्स होती हैं और बोन्स की संख्या आप जानते हैं 206 बोन्स के एडल्ट में पाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे जब हम बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ पे उससे ज़्यादा अधिक होते हैं, क्योंकि वो बाद में चल के वो मॉडिफाइड हो जाती हैं, गोइंग इनटू द मॉडिफिकेशन। तो कुल मिला के कहने का मतलब था कि अल्ना और फिबुला, there are the two types of the bones which are exhibited into the two different regions of the body, that is the forelimb and hind limb. Forelimb is the ulna and hind limbs is the fibula. This is the found ulna and
फिबुला, तो फोरलिम अल्ना एंड हैंड लिम्स फिबुला। तो इस प्रकार से हम फोरलिम्स की बात करते हैं और हैंड लिम्स की बात करते हैं, फिबुला वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। और क्लेविकल जो बोन्स होती है हमारी यहाँ पे, वो भी जो पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स होती हैं, पेक्टोरल ये होता है और पेल्विस हमारी जो एब्डोमिनल या फिर या लंबर रीजन जिसको बोलते हैं वहाँ पे पाया जाता है। उस रीजन को जो हमारी कॉक्सियल रीजन, सैक्रल रीजन होती है उसको कवर करती है पूरी तरीके से। तो वहाँ पे पेक्टोरल पेल्विस रीजन होता है, तो पेक्टोरल गर्डिल एंड पेल्विक गर्डिल होता है। तो पेक्टोरल गर्डिल के पास ये एसोसिएट करती है, ये भी रिड्यूस होती है। तो इस प्रकार के एनिमल्स क्यों रिड्यूस होती है, दैट्स वाई ऑन द बिहाफ इज गोइंग टू द फास्ट रनिंग। तो फास्ट रनिंग के लिए ये रिडक्शन की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। और इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर है, लॉस ऑफ द यूनिवर्सल मूवमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो लेंथनिंग ऑफ डिस्टल सेगमेंट्स ऑफ लिंग नेक्स्ट है। तीसरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लेंथनिंग ऑफ डिस्टल सेगमेंट्स ऑफ लिम्ब, डिस्टल सेगमेंट ऑफ लिम्स। अब इसका क्या मतलब है, लेंथनिंग ऑफ डिस्टल सेगमेंट ऑफ लिम्स, एक प्रकार का और भी फीचर जो कि इसको एक्सप्लेन करता है। इसके एक अंतर्गत जो हमारी डिजिट ग्रेड एंड अनग्यूलिग्रेड फूड पॉस्चरिंग होती है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू लेंथनिंग ऑफ द कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स। अब ये क्या वहाँ पे पाई जाती है, टार्सल्स, मेटाटार्सल, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, आपकी फोरलिम्स एंड हाइंड लिम्स के प्रॉपर ये आपका ये जो रीजन होता है, हाथ हैंड्स का जो रीजन ये यहाँ होता है, तो वहाँ पे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड टार्सल्स, टार्सल्स, मेटाटार्सल एंड कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, ये फोरलिम्स और हैंड लिम्स से जुड़ी होती है। और ये इसकी लेंथनिंग ऑफ द डिस्टल सेगमेंट ऑफ द लिम्स की बात की जा रही है। तो इसकी जो लेंथनिंग इसलिए है क्योंकि ये प्रॉपर ढंग से जो डिजिट ग्रेड्स और अनगुलेट फूड पॉस्चरिंग है वो इंक्रीज करती है इसके आधार पे। तो हम कह सकते हैं कि इसमें एक विशेष ये फीचर होता है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, जो मस्कुलेचर ऑफ द लिम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्प्रिंग लिगामेंट। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ की बात कर लेते हैं हम, मस्कुलेचर ऑफ द लिम्स एंड डेवलपमेंट ऑफ स्प्रिंग। मस्कुलेचर of limbs, musculature of limbs and development of spring ligament। अब just look at here, that is the musculature of the limbs and development of the spring ligament। तो ये जो लिम्स की जो मसल्स होती है, मस्कुलेचर होती है, ये यहाँ पे बहुत ही पावरफुल होती है। पावरफुल क्यों होती है, क्योंकि क्या होना, ये फास्ट रनिंग होती है। तो फास्ट रनिंग में ये जो है जो बोन्स होती हैं उनको कॉम्पैक्टली रूप से यहाँ पे इसको पकड़ बनाते हैं। और जो है कर्सोरियल अरेंजमेंट्स में जो लिम्स की जो मसल्स होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। और बिकॉज ऑफ दिस पावर, देयर पावर एंड टू द स्पीड ऑफ द कंट्रैक्शन, तो जबकि
आप ये समझते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लिम्स की जो मसल्स होती है वो पावरफुल होती है, और पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये बहुत फास्ट रनिंग करते हैं। तो फास्ट रनिंग में जो इनकी लिगामेंट होती है, जो कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रक्रिया ये मसल्स में चलती रहती है, वो इसीलिए यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट ऑफ द स्प्रिंग लिगामेंट। तो स्प्रिंग लिगामेंट क्यों होगा, स्प्रिंग लाइक होगा तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रक्रिया होगी। तो जब वो मूव करते हैं, फास्ट रनिंग करते हैं, तो उस समय वे हेल्प विशेषकर जो है इसको हेल्प करते हैं। तो इसलिए यहाँ की जो मसल्स होती है वो क्या होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगले स्टेप में चलते हैं। अगला जो है टेल्स एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, टेल्स। नेक्स्ट चलते हैं, टेल्स एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, बैलेंसिंग ऑर्गन। तो टेल्स एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, इसकी कैटेगरी के अंतर्गत, इस कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं जो कि इस प्रकार के एडाप्टेशन को एग्जिबिट करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो टेल्स होता है वो काउंटर पॉइज रोल में होता है, ऑर्गन ऑफ काउंटर पॉइज। ये शॉर्ट और बल्की फॉर्म्स में होते हैं और लॉन्ग स्लेंडर होते हैं। टेल्स एज अ बैलेंसिंग ऑर्गन, इससे ही पता चलता है कि ये बैलेंस फॉर द काउंटर पॉइज के फॉर्म में पाया जाता है, काउंटर पॉइज के फॉर्म में पाया जाता है। ऑर्गन ऑफ द काउंटर पॉइज दैट इज अ वेरी शॉर्ट एंड बल्की। तो इस प्रकार से ये जो है छोटा होता है और बल्की होता है, और काउंटर पॉइज होती है। तो फास्ट रनिंग में पूरे बॉडी के को जो है क्या करता है, इसको जो है सपोर्ट करता है। नेक्स्ट चलते हैं, एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म्स है बाइपेडिलिटी। नेक्स्ट बाइपेडिलिटी, बाइपेडिलिटी। तो बाइपेडिलिटी, बाई मतलब दो। अब जो भी एनिमल्स हैं, अब आप देखें सारे जो एनिमल्स हैं वो लिम्स को कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे बाइपेडिलिटी मतलब बर्ड्स और मार्सुपियल्स दो, जो अब आप समझिए बर्ड्स के जो फॉरलिम एंड हिलिम्स होते हैं उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो इसका फॉरलिम्स होता है वो मॉडिफाइड होता है, दैट इज फॉरलिम्स इज मॉडिफाइड इनटू द फीदर्स एंड विंग्स। तो वो मॉडिफाइड होके वहाँ पे उस एरियल एडाप्टेशन के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल हो गए। और जो मार्सुपियल्स होते हैं, जैसे आपने चमगादड़ आप देखेंगे तो उसमें क्या होती है, 2 डिजिट मतलब दो ही फॉरलिम्स जो है मॉडिफाइड हो गई हैं, और हिंडलिम्स के बिहाफ पे ही वो जो है वहाँ पे अपने आप मूवमेंट कर पाते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। तो आप बर्ड्स में भी देख सकते हैं और मार्सुपियल्स में भी देख सकते हैं। तो बाइपेडिलिटी का मतलब होता है जो है, बाई मतलब दो, पेडल। तो यहाँ से इंक्लूड रिडक्शन ऑफ टू द फोरलिम्स विच आर यूज इन टू द प्रिहेंशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ द नेक। तो बाइपेडिलिटी के रूप में यहाँ पे भी एग्जाम्पल के रूप में ये आता है, जो कि टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन के अंतर्गत कॉसोरियल एडाप्टेशन में दिखाई पड़ता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण है, वो है मेंटल प्रिकॉसिटी। तो मेंटल प्रिकॉसिटी जो होती है वो बहुत मेंटल, नेक्स्ट 7th मेंटल प्रिकॉसिटी, प्रिकॉसिटी। मेंटल प्रिकॉसिटी का मतलब ये है कि जो इस फॉर्म्स के एडाप्टेशन के जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो मेंटली स्ट्रांगनेस होती है, मेंटली जो है वो एलिजिबल होते हैं, और वो इस प्रकार से ट्रीट करते हैं जैसे कि जो हायर फॉर्म्स ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं उस प्रकार से। तो यंग वंस जो है वो कासोरियल फॉर्म्स के वो बहुत ही एक्टिव होते हैं और मेंटल प्रिकॉसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि वो एडल्ट में दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से मेंटल एबिलिटी भी इसमें बहुत पाई जाती है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट में, चेंज इन द फूट पॉस्चर।
तो फूड पॉस्चर जो होती है, चेंज इन द फूड पॉस्चर, नेक्स्ट चलते हैं, चेंजेज इन द फूड पॉस्चर। ये भी देखें, ये अगला चेंजेज इन द फूड पॉस्चर, पॉस्चरिंग है जो उसका संरचना है, रूपरेखा जिसको आप बोल सकते हैं। तो फूड का जो पॉस्चरिंग है वो चेंज होता है, क्योंकि क्या है, जो डिजिट्स होती हैं इसमें डिजिट ग्रेड फूड पॉस्चरिंग होती है, और यहाँ पे बोन्स ऑफ द रिस्ट, पाम, एंकल एंड द सोल आर रेज फ्रॉम द ग्राउंड। तो इस प्रकार से जो है कर्सोरियल एनिमल्स जो होते हैं वो डिजिट ग्रेड को, फूड पॉस्चरिंग को कंटेन करते हैं। डिजिट ग्रेड जो फूड पॉस्चरिंग होती है उसको प्रोसेस करते हैं, पॉस्चर होता है वो करते हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो कर्सोरियल एडाप्टेशन है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के द्वारा, वो बहुत अलग अलग प्रकार के फीचर्स को कंटेन करते हैं, जिसके माध्यम से हम जो है यहाँ पे कर्सोरियल एडाप्टेशन को समझ सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत हम वी आर जस्ट गोन आउट टू द अनदर टाइप ऑफ द एडाप्टेशन, टू द fossorial adaptation which are seen अब हम इसमें सेकंड में देखते हैं फासोरियल एडाप्टेशन के अंतर्गत कि फासोरियल एडाप्टेशन में क्या होता है। अब फासोरियल एडाप्टेशन क्या है, दोज ऑफ द एनिमल्स विच आर लिव इनटू द burrows or the under the stones, that is called to the burrowing adaptation. Burrowing animals are to the fossorial animals, and that adaptation is called to the burrowing adaptation or to the fossorial adaptation. तो इस प्रकार से इसको अलग अलग बोलते हैं। इसमें भी बहुत भी अलग अलग फीचर्स हैं, जो मॉडिफाइड फीचर्स हैं जो इसको एलिजिबल बनाते हैं कि ये fossorial रह सके। तो ये कर्सोरियल से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। कर्सोरियल में जहाँ प्लेन्स पे पाए जाते हैं ये जो है बरोज होते हैं, वो फास्ट रनिंग करते हैं, जबकि इसमें जो है लिम्बलेस भी हो सकते हैं, रिड्यूस होता है, और अलग अलग प्रकार के फीचर्स होते हैं। उसकी बॉडी जो होती है कंप्रेस्ड और फ्लैटेंड रिब्स के साथ में होती है, फास्ट रनिंग के लिए रेजिस्टेंस पैदा करती है, जबकि इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको जो है फीचर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले अलग अलग फीचर्स में जो फासोरियल एडाप्टेशन है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो फीचर्स आएगा वो बॉडी फॉर्म्स की बात करेंगे। तो बॉडी फॉर्म्स की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला आपका बॉडी फीचर्स में बॉडी कंटूर जिसको बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि इसकी जो बॉडी है वो स्ट्रीम लाइक बॉडी होती है, स्ट्रीम लाइक बॉडी, सिलेंड्रिकल एंड वर्म लाइक, सिलेंड्रिकल और वर्म लाइक बॉडी, वर्म लाइक। तो इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है या फिर इसको वर्म लाइक होता है ये पूरी तरीके से, और ये फ्यूजीफॉर्म या स्पिंडल शेप्ड बॉडी को कंटेन करता है। फ्यूजीफॉर्म और स्पिंडल शेप्ड बॉडी को कंटेन करता है, शेप्ड बॉडी को कंटेन करेगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। बॉडी जो होगी वो सिलेंड्रिकल होगी, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, या फिर वर्म लाइक, जैसे फ्लैट वर्म होते हैं या फिर जो है टेप वर्म होते हैं जो कि एंडोपैरासाइट फॉर्म में पाए जाते हैं, उसी प्रकार के, क्योंकि क्या बरोविंग होते हैं और जो इसलिए इनकी जो बॉडी होगी वो इनकी बॉडी का जो प्रॉपर जो बॉडी होगी वो छोटी होगी और वर्म लाइक दिखते होंगे। इस प्रकार से जब फीचर्स की बात करते हैं तो हम स्पिंडल शेप्ड जो इस प्रकार की बॉडी होगी विशेषकर छोटी सी, तो इसलिए
इसको स्पिंडल शेप बोला जाता है। अब हम चलते हैं इसके एक एक प्रॉपर जो है फीचर्स पे। तो हम देखते हैं कि हेड नेक की बात करें, हेड और नेक की बात करें हम, जब हेड पहले कैसा होगा इसका, जो हेड रीजन है इस ये कॉनिकल होता है, कॉनिकल फीचर्स का होता है, कॉनिकल फॉर्म में होता है, और जो है ये इंसिपिएंट और इनडिस्टिंक्ट फॉर्म फ्रॉम द ट्रंक। हेड इज द इंसिपिएंट एंड इनडिस्टिंक्ट तो इंसिपिएंट एंड इनडिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे ट्रंक से ये अलग नहीं होता, ट्रंक के साथ में जो है ये इंसिपिएंटली रूप से वहाँ पे इनडिस्टिंक्टली रूप से उसके साथ में जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार का ऐसा हेड रीजन पाया जाता है। और जो है ये रफली कॉनिकल, जैसा मैंने पहले भी बताया, कॉनिकल होता है। और इस आगे देखते हैं कि नेक रीजन इसका क्या होता है। नेक रीजन जो होता है वो अफिनली जो है नेक को देख लेते हैं। थर्ड जो इसमें में बात कर लेते हैं, थर्ड नेक क्या होगा, आइदर एब्सेंट होगा, आइदर एब्सेंट और वेरी शॉर्ट, बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि ये क्या है, बरोविंग है, इसलिए इस प्रकार के अडॉप्टेशन को प्राप्त करने के लिए इन्होंने उसको लॉस कर दिया है। तो नेक रीजन एब्सेंट हो या फिर बहुत ही छोटा होगा। इस प्रकार से इसके अलग अलग फीचर्स, मॉडिफाइड फीचर्स देखने को मिल रहे हैं एनिमल। अब देखते हैं टेल्स की बात करते हैं। तो टेल्स जो होता है, फोर्थ देख लेते हैं, टेल। अब टेल क्या होगा, फासोरियल जो एडाप्टेशन होता है, अब यहाँ पे टेल्स जो होते हैं बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ते, देयर आर नो एग्जिबिशन, या यहाँ पे नहीं होते, या फिर वेस्टिजियल होते हैं, वेस्टिजियल। तो वेस्टिजियल जानते हैं रूडिमेंट्री है, मतलब सामान्यतः वो उसका ये पता चलेगा, ये दिखाई, मतलब ये हमें लगेगा कि हाँ यहाँ पे जो है टेल्स पाया जाता है, वेस्टिजियल फॉर्म में टेल है, लेकिन उसका देयर आर नो सिग्निफिकेंट रोल, यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, क्योंकि ये क्या होते हैं, बरोविंग होते हैं। तो बरोज में इसका कोई रोल नहीं होता, इसलिए टेल्स जो होता है फासोरियल एनिमल्स के अंतर्गत, वो वेस्टिजियल या फिर जो है एब्सेंट होता है। लिम्स की बात करते हैं। लिम्स के अंतर्गत ये लिम्स 5th नंबर पे चलते हैं हम, लिम्स। अब लिम्स जो होता है, क्योंकि प्रॉपर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वी आर डिस्कस अबाउट टू द सेवरल एनिमल्स बिकॉज दैट्स टू come from to the different categories according to the classification. So in here to the limbs या तो absent होगा, absent, या फिर अगर पाया जाएगा या फिर अगर होता है और तो वो किसके लिए होगा, बरोविंग होंगे। तो अलग अलग एनिमल हैं, ग्रुप्स ऑफ द एनिमल्स है, फिशेज है, जैसे कह सकते हैं एम्फीबियंस है, रेप्टिलियन है, एवीज है, मैमल्स की कैटेगरी है। तो इस हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो सिलीसियन और स्नेक जो होते हैं, डिगिंग एंड बरोविंग, ये हमने कहा एब्सेंट है या प्रेजेंट होंगे। तो किसके लिए, डिगिंग के लिए, डिगिंग और बरोविंग, डिगिंग और बरोविंग के लिए। अब डिगिंग मतलब जो कैसे कहते हैं, गड्ढे खोदना, डिगिंग एंड बरोविंग है। तो जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि सिलीशियंस एंड स्नेक, बरोविंग, लिजार्ड और लिम्स फॉर्म। हम बात कर लेते हैं सिलीशियंस की।
सिलीशियंस स्नैक्स एंड लिजार्ड जो होते हैं, लिजार्ड, वो खासकर जो लिजार्ड जो होते हैं लिम्बलेस फॉर्म्स में होते हैं। ये तो पहली कैटेगरी हो गई, फर्स्ट की वो लिम्बलेस है, या तो पाया ही नहीं जाएंगे, लिम्बलेस है, या फिर दूसरा ये है अगर पाया जा रहा है, प्रेजेंट है, तो वो डिगिंग और बरोविंग फॉर्म के लिए है, तो वो एनिमल्स आएंगे। बरोविंग जो मैमल्स होते हैं वो फॉरलिम्स मॉडिफाइड होते हैं। जो बरोविंग एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, बरोविंग जो मैमल्स होते हैं, बरोविंग मैमल्स, ध्यान रखें, बरोविंग मैमल्स जो होते हैं वो डिगिंग के लिए या बरोविंग के लिए जो है, जो फॉरलिम्ब होता है उनका, फॉरलिम्ब वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। तो मॉडिफाइड होके डिगिंग प्रोसेस के लिए लिम्स को उस प्रकार के लिम्स को कंटेन करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग एनिमल्स में जो है अलग अलग फॉर्म्स होता है। अब जैसे मोल्स की बात करें तो फैल्सीफॉर्म्स बोन्स ऑफ द रिस्ट गिव टू द ग्रेट ब्रीथ ऑफ द पाम। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग जो है एनिमल्स के लिए अलग अलग लिम्स की बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम बात करते हैं लिम्स, बोन्स एंड गर्डिल की। लिम्स बोन्स एंड गर्डिल, ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, इसमें कोई डायग्राम नहीं होता। यहाँ पे पूरे केवल कैरेक्टर को समझना और इन्हीं कैरेक्टर के आधार पे ये एडॉप्टेशन की कैटेगरी बनाई गई है। तो आपको बस यहाँ पे ये समझना है कि किस प्रकार का मॉडिफिकेशन हुआ जिसमें वो अलग अलग हैबिटाट को इन्होंने प्रोसेस किया। तो उसी के आधार पे हम पूरे कैरेक्टर को बस बताते चल रहे हैं आपको कि अब हम अगला देखते हैं लिम्स, बोन एंड गर्डिल। गर्डिल हमने बताया पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डिल होता है। तो जो अब जो यहाँ पर जो लिम्स बोन होंगे आपके, क्लेविकल होंगे, स्कैपुला होगी फॉरलिम के लिए, या फिर जो है पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डिल में, तो ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। और क्योंकि इनको क्या करना होता है, बरोस में जाना होता है, बरोविंग होते हैं और जो है वहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं। तो शोल्डर गर्डिल्स जो होती हैं वो बहुत ही पावरफुल होती हैं और फॉरवर्डली प्लेस्ड होती हैं। स्कैपुला स्टर्नम जो होती है लैंड होती है। तो इस प्रकार से ये भी जो है अलग ही प्रकार का है लिम्स, बोन्स एंड गर्डिल, ये बहुत ही पावरफुल है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगली तरफ। वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम, सेवेंथ देख लेते हैं, सेवेंथ वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम पूरी तरीके से फ्यूज होती है। अब हम देखते हैं, जैसा मैंने अभी एक्सोस्केलेटन की बात की थी कि अब यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम अब ये यहाँ से थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन, पूरे रीजन को ये क्या किया जाता है, फ्यूज्ड होते हैं। ये फ्यूज्ड हैं क्योंकि ये क्या है, बरोविंग्स हैं। तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम जो दिखाई पड़ेगा वो फ्यूज्ड होगा और ये सारे रीजन्स जो होंगे, हमने कहा सर्विकल, सैक्रल, लंबर, वो फ्यूज्ड होंगे और इसको फिर्मनेस प्रदान करते हैं, पुश करते हैं, जिससे कि ये अर्थ पे अच्छे से चल सके। इसलिए ये, अब स्किन की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्किन, ये सारे कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे बस याद रखने हैं। स्किन, अब जैसा कि ग्रुप ऑफ द एनिमल्स इसमें इन्वॉल्व है इस डिस्कशन में, तो हम अलग अलग ग्रुप की बात करेंगे स्किन के फॉर्म में। तो बरोविंग जो एनिमल्स होते हैं अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो म्यूकस पाया जाता है एनिलिड्स में, काइटिन, स्केल्स एंड स्पाइंस। तो अब अलग अलग करते हैं। तो एनिलिड्स जो होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स है, उसके बॉडी पे म्यूकस पाया जाता है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब स्किन पे म्यूकस होता है, किसमें, एनिलिड्स में। एनिलिडा, एनिलिड्स जो होते हैं वो म्यूकस को कंटेन करते हैं। आगे चलते हैं, जो
इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में ही आर्थ्रोपोडा आता है। आर्थ्रोपोडा वन ऑफ द बिगेस्ट फाइलम इन प्रोस्पेक्टिव फॉर दैट टू द नंबर्स। तो बहुत बड़ा जो है फाइलम है, क्लास है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी संख्या में जो है एनिमल्स पाए जाते हैं इस कैटेगरी में। आर्थ्रोपोडा, तो जॉइंट यहाँ पॉट्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में क्या पाया जाता है, ये काइटिन पाई जाती है, काइटिनस होती है। तो उसकी जो अपर सर्विक्स, जो इसको आप कह सकते हैं एक्सोस्केलेटन जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनस इन नेचर होती है और उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। मतलब उसकी स्किन की बात हो रही है, आउटर इंटुगमेंट्स की बात कर रहे हैं हम। अगर हम चलते हैं, स्केल्स पाया जाएगा सिलीशियंस में और रेप्टिलियंस में। सिलीशियंस में हम स्केल्स की बात कर लेते हैं, जैसे आपके फिशेस होती हैं उसमें स्केल्स पाई जाती है, उसी प्रकार से सिलीशियंस की बात करते हैं। सिलीशियंस में, और जो आपके रेप्टाइल्स हैं उसमें रेप्टाइल्स में स्नैक होता है, उसमें भी स्केल्स पाई जाती हैं। और फ्यूर एंड स्पाइंस जो होती हैं, फ्यूर एंड स्पाइंस पाई जाती हैं, जो कि किसमें इंडिकेट करती है, मैमल्स। जो खासकर मैमल्स की भी अलग अलग कैटेगरी है। तो जो प्राइमरली मैमल्स होते हैं उसमें फ्यूर्स और स्पाइंस होती है। आप जैसे एग्जांपल में आप एकेडिना देख सकते हैं, एंटीटीटर जिसको बोलते हैं, उस पर स्पाइंस पाई जाती है। तो ये क्या है, स्किन पे इस प्रकार के अलग अलग जो है फॉर्म्स ऑफ द एनिमल्स विच आर स्टार्टेड फ्रॉम टू द इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, सो दैट विच एग्जिबिट टू द म्यूकस, काइटिनस, स्केल्स एंड टू द फ्यूर एंड स्पाइंस फ्रॉम दैट टू द। अब आगे चलते हैं लॉस ऑफ। अब यहाँ पे हम आइज की बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आई की बात करते हैं। आइज, अब आइज इसमें पाया जाता है, ये नहीं पाया जाता है। आइज को देख लेते। आइज जो होता है वो यहाँ पे लॉस ऑफ द आइज, यहाँ पे आइज नहीं पाया जाता, लॉस करता है पूरी तरीके से। आइज जो होता है वो लॉस कर जाता है, रेड्यूस, वेस्टिजियल और नॉन फंक्शनल होता है। और इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आइज नहीं पाया जाता। अब पिन्नी, नेक्स्ट 9 नंबर हम देख लेते हैं। पिन्नी की बात करते हैं। पिन्नी क्या होता है, जो हमारी ईयर्स होती हैं, ईयर्स में जो एक्सटर्नल ईयर होती है वो पिन्नी को कंटेन करती है, जो वहाँ पे एसोसिएट करती है। तो यहाँ पे डिसअपियरेंसेस ऑफ पिन्नी, डिसअपियर होती है, यहाँ पे नहीं पाई जाती। अपीयरेंस ऑफ पिन्नी, पिन्नी जो होती है वो डिसअपियर्ड करती है, तो यहाँ पे नहीं पाई जाती है। और जो पिन्नी होती है वो साउंड्स को जो है एब्जॉर्ब करने के लिए, खासकर एक्सटर्नल एयर विच कलेक्ट्स साउंड वेव्स फ्रॉम द एयर हैज़ नो यूटिलिटी इन द बरोइंग एनिमल्स। तो साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है ये पिन्नी, एक्सटर्नल ईयर जो मैंने पहले भी बताया, ये जो हमारा ईयर्स होता है खासकर ह्यूमन बींग्स में, वो साउंड्स को जो वहाँ से निकलती है साउंड और यहाँ पे आती है, टकराती है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो है वेव्स फ्रॉम द एयर तो कलेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो बरोइंग एनिमल्स या बरोइंग एडाप्टेशन प्राप्त करने वाले जो एनिमल्स हैं उसमें पिन्नी नहीं पाया जाता, डिसअपियरेंस होता है। और इसी प्रकार से आगे चलते हैं फिर अगले एक नए कैरेक्टर के पास, जो नेक्स्ट है वो टेक्टाइल ऑर्गन है। 10th देख लेते हैं, टेक्टाइल ऑर्गन। टेक्टाइल ऑर्गन क्या है भाई? टेक्टाइल ऑर्गन का मतलब ये हुआ कि ये इसमें स्पेशली डेवलप्ड होता है, कंपनसेट फॉर द साइट एंड हियरिंग, देखने के लिए साइट एंड हियरिंग, सुनने के लिए साइट,
साइट एंड हियरिंग। तो साइट और हियरिंग जो होता है वो इसके लिए कंपनसेट करने के लिए टैक्टाइल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो हमारे फासोरियल एडाप्टेशंस होते हैं, और वहाँ पे इसको कंपनसेट करके टैक्टाइल्स फॉर्म में यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि साइट और हियरिंग में इसको हेल्प करते हैं। इस आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट है डिगिंग ऑर्गन्स, मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस फॉर। अब फासोरियल का एक सबसे महत्वपूर्ण जो प्रोसेसेस है, जैसा मैंने कहा, नेक्स्ट 11th डिगिंग प्रोसेस। डिगिंग जो मैकेनिज्म है, डिगिंग फीचर्स है, वो यहाँ पे फासोरियल एडाप्टेशन का एक यूनिक फीचर्स होता है, इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशंस होता है। फासोरियल लाइफ के लिए डिगिंग प्रोसेस जो है, सम डिगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्नट, फॉरलिम्स और टिथ। डिगिंग जो स्ट्रक्चर्स होंगे, स्नट, फॉरलिम्स और टिथ। स्नट, फॉरलिम और टिथ, ये क्या होते हैं? डिगिंग ऑर्गन्स होते हैं। और ये मैंने कहा कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट इनटू द adaptation of the fossorial adaptation which have to the digging organ in form the snout, forelimbs or the teeth. So that this is the important characters for that to the representing or the exhibiting to the fossorial adaptation in the fossorial adaptation. So that in this videos we are just to explain that to the all the characters which necessary, which important, that for the categories the adaptation to the cursorial adaptation, then fossorial adaptation. Cursorial is the plains animals which are found plains and go into the fast running, dash to the there are the muscles and to the bones is the very strong, and to the others the ulna and fibula is the reduced, the tail is the balancing organ. So that is the many features, but in the condition of to the fossorial adaptation, that is the digging organs is a very important. That's to the skins, eyes, tails, limbs and head regions is so important as a character, and these are the modified organs and the characters for that to the better aliveness. So the animals which are alive through the modifications or changes in the body, so that this topic of to the terrestrial adaptation is going on is a very important. So that to complete this topic, and to the in the next videos we are just going to the related topic is to the adaptation is arboreal adaptation. Thank you.